প্ল্যান বি তখনই তৈরি করতে হয় যখন প্ল্যান এ মেনে এগিয়ে গেলে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা 60% থেকে কম হয়। আমি 100% নিশ্চিত যে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতে আসবেন মোদিজি। গোটা দেশ সেটাই চায়। এই দেশে মোদিজির সঙ্গে 60 কোটিরও বেশি উপভোক্তাদের একটি শক্তিশালী ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে, যে ফৌজের না কোনো বর্ণ আছে, না কোনো বয়স সীমা আছে। বিজেপির জেতা নিয়ে 100% নিশ্চিত বলে জানালেন অমিত শাহ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক বেসরকারি সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়, যদি তাদের জেতার ক্ষেত্রে প্ল্যান এ ফেল করে তাহলে তাদের প্ল্যান বি কি। এই প্রশ্নের উত্তরে শাহ বলেন, প্ল্যান বি তখনই তৈরি করতে হয় যখন প্ল্যান এ মেনে এগিয়ে গেলে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা 60% থেকে কম হয়। আমি 100% নিশ্চিত যে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতে আসবেন মোদিজি। এবার আপনাদের শোনাবো এই বিষয়ে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনুন। जो अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तैयार नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है इस देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। এরপরেই সাক্ষাৎকারে শাহকে প্রশ্ন করা হয় যে যদি 4 জুন দেখা যায় বিজেপির আসন সংখ্যা 272-এর নিচেই থেকে গেল তখন কি করবেন। সেই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শাহ বলেন, আমি এরকম সম্ভাবনা দেখছি না। এই দেশে মোদিজির সঙ্গে 60 কোটিরও বেশি উপভোক্তাদের একটা শক্তিশালী ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে, যে ফৌজের না কোনো বর্ণ আছে, না কোনো বয়স সীমা আছে। আমরা প্রায় 4 কোটি গরিব মানুষকে বাড়ি দিয়েছি। এবার নির্বাচিত হয়ে আসার পরে আরও 3 কোটি মানুষকে দেব। সেই সঙ্গে মোদী সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে কি কি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে সেটার তালিকা তুলে ধরেন শাহ। আর তারা যে বিজেপিকেই ভোট দেবেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কি বলছেন এই বিষয়ে অমিত শাহ, শুনব। 4 जून को 272 पार नहीं करते आप तब? मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है, ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में एलपीजी का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। पीएम किसान लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे। आज़ादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई। न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही।
একই সঙ্গে তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজেপির একজন সাংসদ আছেন এই দেশে এসসি এসটি ওবিসি সংরক্ষণকে কেউ হাত লাগাতে পারবে না। নরেন্দ্র মোদীর থেকে বড় এসসি এসটি ওবিসির বড় সমর্থক কেউ নেই। আসুন শোনাই আর কি বললেন অমিত শাহ। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। প্ল্যান এ এবং প্ল্যান বি। প্ল্যান বি তখনই তৈরি করতে হয় যখন প্ল্যান এ মেনে এগিয়ে গেলে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা 60% থেকে কম হয়। আমি 100% নিশ্চিত যে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতে আসবেন মোদিজি। গোটা দেশ সেটাই চায়। এই দেশে মোদিজির সঙ্গে 60 কোটিরও বেশি উপভোক্তাদের একটা শক্তিশালী ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে, যে ফৌজের না কোনো বর্ণ আছে না কোনো বয়সসীমা আছে। বিজেপির জেতা নিয়ে 100% নিশ্চিত বলে জানালেন অমিত শাহ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক বেসরকারি সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে কি বললেন আসুন শুনি। जो अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तैयार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में एलपीजी का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।